Good morning to everyone. Limited liability partnership, we have done one sum where we are preparing final accounts in the format of LLP. Capital is known as contribution. So let us start with the second sum. Salman, Arbaz and Sohil carried on business on partnership, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. So there are three partners, Salman, Arbaz and Sohil, and their partnership ratio for sharing the profit and losses is 2:1:2. The trial balance of the firm as on 31st March 2018 was as follows. Plant and machinery, investment, sales return, furniture, motor vehicle, land and building, purchase, opening stock, salary, office expense, rent and insurance, accountant fees, debtors, cash at bank, drawing, all the three partners, bills receivable, printing and stationery. So we have some assets and we have some expenses in the debit side of the trial balance, and in the credit side capital account is given, sales is there, traders is there, commission is there, that will be commission received income, bills payable, bank loan, and we have bank overdraft, short-term borrowings. So now what we will have to do, we will have to now read the adjustments. So stock on 31st March 2018 is the closing stock. There is depreciation in land and building, furniture, plant and machinery and motor vehicle. So furniture, land and building, motor vehicle and plant and machinery, all are having depreciation effects. Then we provide for the following outstanding expense. Salary is having outstanding expense, printing and stationery is having outstanding effect. So we will have to mark that it is having outstanding effect. And then insurance prepaid. So insurance is also having adjustment. Then you are required to prepare trading and profit and loss account, that is income and expenditure account, and a statement of assets and liabilities, balance sheet. So we will, let us prepare the format for balance sheet and the income and statement account, income and expenditure statement. So statement of assets and liabilities as on, what is the date? 31st March 2018. Then we have another one format, statement of income and expenditure for the period from, we have to show from. अगर ये 31st March 2018 को खत्म होता है तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा? 31st April 2017 to 31st March 2018, 1 year का period. Now what we will do, we will prepare the, we'll add the table. Schedules or note to account, whatever you may refer. Schedules and rupees. Same one I will copy.
So now in the balance sheet, what we have, the first one what we have is the contribution. वहाँ पे it is equity, इधर हम equity को contribution बोलते हैं. So and liabilities. So इधर हमारे पास सबसे पहला है पार्टनर्स फंड्स एंड उसके बाद है लाइबिलिटीज, इसको हम बोल देंगे 2. तो इसमें क्या आता है, पार्टनर्स फंड में कंट्रीब्यूशन में हम वी कैन सी एनी रिजर्व्स, तो इसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज देयर, ड्रॉइंग प्रॉफिट ऐड होगा, नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होगा तो माइनस, एंड ड्रॉइंग्स को लेस करना है. दैट वी हैव टू डू एंड दैट वी विल डू इन द शेड्यूल और नोट्स टू अकाउंट. एंड देन वी हैव liabilities में let us see later what all heads we will have. We can see in the liability side now itself ना कि हमारे पास क्या क्या हेड्स है, क्योंकि क्रेडिट साइड लाइबिलिटी का है, कैपिटल पार्टनर्स फंड में आएगा, सेल्स इनकम है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को हम ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल, यहाँ पे वी से क्रेडिटर्स स्ट्रोक ट्रेड पेएबल, और वी कैन ओनली से क्रेडिटर को तो हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं. देन हमारे पास बिल्स पेएबल है, तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल को ऐड करेंगे तो ट्रेड पेएबल आ जाएगा. फिर बैंक लोन, normally bank gives loan on security, so secured loan. Then bank overdraft is short term borrowing. मतलब हमारे पास ये 3 है और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो उसको तो अदर लाइबिलिटीज में बता देंगे. तो इधर हमारे पास क्या है, सिक्योर्ड लोन में बैंक लोन है, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है, ट्रेड पेएबल्स, एंड हमारे पास अदर लाइबिलिटीज में सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब दिया है, उसका टोटल इधर लिख लेंगे. मतलब हमारा लाइबिलिटी साइड तो बन गया. नाउ दिस विल बी टोटल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब असेट्स. द असेट्स में सब हमें क्या लिखना होता है, हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस फिक्स एसेट चाहिए होता है, उससे हम लेस करते हैं depreciation and amortization. Then we get our net fixed assets minus करके. फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट होगा तो वो लिखते हैं. लेट अस सी इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज देयर. असेट साइड में इन्वेस्टमेंट है, फिर क्या है, स्टॉक रहेगा. यस, स्टॉक विल बी देयर, क्लोजिंग स्टॉक. तो इन्वेस्टमेंट के बाद एक्चुअली यहाँ पे अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम्स इन लोन्स एंड एडवांसेस. देन वी राइट इन्वेंट्रीज, देन वी राइट डेटर्स, ट्रेड पेएबल, सॉरी ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीव, डेटर, बिल रिसीवेबल, एंड लास्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. फिर इसका टोटल आएगा, दैट विल बी द टोटल ऑफ द असेट. नाउ आफ्टर दिस फॉर्मेट वी हैव द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें नंबर 1 में आता है इनकम. फिर इनकम में हम क्या लिखते हैं, वी राइट द, इफ रिटर्न्स, टर्नओवर मतलब सेल्स लिखते हैं, ग्रॉस टर्नओवर माइनस रिटर्न्स विच इज इक्वल टू द नेट टर्नओवर. लास्ट सम में देयर वाज नो रिटर्न्स, सो हमने ग्रॉस टर्नओवर लिखा था. देन वी राइट अदर इनकम,
and then we write changes, that is increase or decrease in stocks. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तीन सिर्फ इधर आता है इन द इनकम, तो हमें मिलता है टोटल इनकम। से इनकम में एकदम ध्यान से देखो, इनकम में क्या है अपना सेल्स, देन अदर इनकम, and then increase or decrease in stock, that is closing stock minus opening stock, that will come. And then we move to the second one, that is expenses. एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस में वी हैव रॉ मटेरियल कंज्यूम, बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली परचेसेस दिया है, सो वी कैन राइट रॉ मटेरियल कंज्यूम सब नहीं है, परचेसेस मेड फॉर रीसेल। फिर उसके बाद हमारे पास रहता है कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। I guess nothing related to factory is given because ये लोग परचेज करके सेल करते हैं। यहाँ पे सैलरीज है, सी नथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंस, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पर्सोनल, मतलब सैलरी सब एक्सपेंस है, पर्सोनल एक्सपेंसेस दैट इज स्टाफ एक्सपेंस, इसमें सैलरी बोनस इंसेंटिव सब लिखना है। फिर ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव expenses, administrative expenses, and उसके बाद सारा ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस इधर लिखेंगे। इसके बाद पेमेंट टू ऑडिटर, सेलिंग एक्सपेंस, एनीथिंग लाइक दिस इज दैट सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, कुछ भी नहीं है। सिर्फ डेप्रीसिएशन, हमारा रेंट एंड इंश्योरेंस जो है वो हम ऑफिस में ही लिख देंगे, अलग से हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है। सी रेंट इज मोर, इंश्योरेंस इज लेस, तो हम रेंट इज कम्स इन द ऑफिस एक्सपेंस, तो अगर अलग से इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस एक्सपेंस में लिखते, पेमेंट टू ऑडिटर रहता तो ऑडिट एक्सपेंस में, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस रहता तो सेलिंग एक्सपेंस में, और हमारे पास इंटरेस्ट कुछ दिया रहेगा तो इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंस कुछ रहेगा तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है जो हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन में है भी, दैट इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये फिर अगर कुछ और कुछ रहेगा तो हम उसको अदर एक्सपेंसेस में बता देंगे, अगर कुछ और हम इधर रहेगा तो। और इसके बाद जो कोई भी हेड में नहीं आता, दैट विल कम इन द अदर एक्सपेंस एंड द टोटल। और उसके बाद जो डिफरेंस मिलेगा, दैट विल बी द प्रॉफिट ट्रांसफर टू द क्या, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड टू partners account. This is our both format done. Now what we will do, we will start with the schedules, or you may call it as notes to account. इसमें हमारा जो पहला नोट है वो होता है कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास तीन, there are 3 partners, so एक एक पार्ट, या तो हम अकाउंट बनाएंगे जैसे लास्ट सम में किया था, बट उसमें अकाउंट बनाना ज़रूरी था बिकॉज एडमिशन का इफेक्ट गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना था। यहाँ पे हमें तीन ही चीज़ करना है, लास्ट ईयर का कैपिटल बैलेंस, add current year profit minus drawings, only that much we need to do. So if we want, we can here also prepare that account, but फिर हर एक 1 2 3 1 2 3, सो हमें सलमान, अरबाज, सोहिल, पर्टिकुलर्स, सलमान, अरबाज, सोहिल। So this way
हमें दिखाना पड़ेगा। या तो हम अगर सिंपल ही करना है तो सिंपल में क्या करो, ओपनिंग बैलेंस लिखो, प्रॉफिट लॉस कुछ रहेगा, प्रॉफिट तो ऐड करो, लॉस तो माइनस करो, ड्रॉइंग लेस करो, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। नहीं तो मैं यहाँ पे अगर अकाउंट के साथ करना है तो क्योंकि लाइबिलिटी है हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो एक एक पार्टनर का क्या कैपिटल बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा। 2,25,000, 1,30,000, 1,65,000. So I will write 2,25,000 and what is 1,30,000 and 1,65,000. फिर प्रॉफिट तो बाद में पता चलेगा। ड्रॉइंग दिया है क्वेश्चन में, ड्रॉइंग्स, what is the drawing given, we will check in the debit side of the trial balance, 30, 15, 47, 500. So we will write here 30,000, 15,000 and 47,500। ये कंट्रीब्यूशन हमें कब मिल जाएगा, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालेंगे तब। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लाइबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन के बाद हमारा नेक्स्ट है द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या है, लाइबिलिटीज में सिक्योर लोन है एंड सिक्योर लोन में दैट इज ओनली वन। आई एम नॉट मेकिंग द नोट यहाँ पे, तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम राइटिंग हियर बैंक लोन, और वो बैंक लोन का अमाउंट इधर लिखेंगे 2,50,000। तो अमाउंट क्या है 2,50,000। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, ये भी नोट बना के लिख सकते थे, नोट बना के लिख सकते थे। सो मैं तो यहाँ पे बिकॉज ओनली वन आइटम इज देयर, आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर। एंड ट्रेड पेबल्स में नोट बनाना पड़ेगा बिकॉज क्रेडिटर भी है, बिल्स पेबल भी है। क्रेडिटर 2,17,500, बिल्स पेबल 9,500। तो यहाँ पे सेकेंड वन आई विल मेक ऑफ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आई विल राइट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट एंड बिल्स पेबल का अमाउंट, बिल्स पेबल का अमाउंट। सो क्रेडिटर्स कितना है 2,17,500, क्रेडिटर इज 2,17,500 एंड बिल्स पेबल इज हाउ मच, इट इज 90,500। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, 2,17,500 प्लस 90,500, इट इज कमिंग टू 3,08,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,08,000। लेकिन है ना, व्हाट वन मोर थिंग यू कैन डू, सब आउटस्टैंडिंग को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट बिकॉज इट इज पार्टनरशिप नॉट वेरी सिस्टमैटिक, तो एलएलपी का बैलेंस शीट है, बट आई वुड प्रेफर कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अलग से ही बताएं अदर एक्सपेंसेस में, अदर लाइबिलिटीज में। तो नेक्स्ट थर्ड वन, अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, अदर लाइबिलिटीज में हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो दैट विल कम 26,000। सो आई विल राइट हियर अदर एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग salaries, outstanding printing and stationery। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000 है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। दोनों को ऐड किया 26,000, 26,000। So I will write here 26,000। कुछ मिस आउट हो गया है तो बाद में देखेंगे, अगर कुछ मैंने अभी मुझे दिखा नहीं है। सो दिस इज डन।
नाउ वी विल गो टू द असेट साइड. तो अभी हमें कौन सा नोट बनाना पड़ेगा असेट में? असेट साइड में फोर्थ वन, इसमें जो हमारा फिक्स असेट है ना, उसके लिए एक नोट बनाते हैं. फिक्स असेट में मुझे तीन चीज चाहिए, तो मैं वो तीनों का नोट बना देती हूँ. मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस फिक्स एसेट चाहिए, डिप्रिसिएशन चाहिए एंड नेट फिक्स एसेट. सो अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो टोटल करके बनाना इजी हो जाता है. कल तो दो ही एसेट था लास्ट लेक्चर में. सो it was okay that I write land and building, then vehicle one by one. But here many assets are there. So it will be systematic if we will prepare a column for each of them. each जो हमें वहाँ पे लिखने के लिए जो हमें अलग अलग हेड्स चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कॉलम्स बना सकते हैं. फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए? फिर हमें इधर नेट फिक्स एसेट चाहिए माइनस करके, उसका एक्चुअली टोटल चाहिए. तो यहाँ पे तो कितने सारे एसेट्स हैं? प्लांट एंड मशीनरी है सबका. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग. एक और कॉलम चाहिए रहेगा पर्टिकुलर्स के लिए. सो यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना दूंगी, बिकॉज मुझे चाहिए ना कौन सा एसेट. उसका अमाउंट लिखने से पहले आई वुड ऑल्सो रिक्वायर पर्टिकुलर्स. कौन सा एसेट है? लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, vehicle. What else is there? Plant and machinery, furniture, motor vehicle, land and building. So ये चार है. सेवन राइट. फर्नीचर. सो ये सबका अमाउंट लिख लेते हैं जो बैलेंस शीट में दिया है. सो how much is plant and machinery given? It is given 3,75,000. How much is furniture given? 1,17,500. How much is land and building given? 2,50,000. How much is motor vehicle given? 1,50,000. ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन में से. सो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है? 3,75,000, 1,17,500, 1,50,000, 2,50,000. सेम अमाउंट्स आई हैव रिटन हियर. एक एक करके द सेम अमाउंट्स आई हैव रिटन. सो मुझे इसका टोटल भी चाहिए, क्योंकि इसका टोटल मुझे लिखने के लिए चाहिए. सो इसका टोटल कितना आता है? जस्ट देख लो हाउ मच टोटल वी आर गेटिंग. आर वी गेटिंग 8,92,500. इसके बाद अभी डिप्रिसिएशन निकालना है. सो डिप्रिसिएशन कितना परसेंट है? देखो एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग में 5, फर्नीचर पे 10, प्लांट एंड मशीनरी पे 20 एंड मोटर व्हीकल में 20. प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल 20, फर्नीचर 10 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 5%. तो फर्नीचर पे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल में 20% है. प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हीकल में 20% है. सो फाइंड आउट 20%. 20% 3,75,000 का 20%. हाउ मच यू आर गेटिंग? 75,000. फर्नीचर पे भी 20%. फर्नीचर पे कितना परसेंट है? हाउ मच इज फर्नीचर? फर्नीचर आई थिंक इज 10%. फर्नीचर इज 10%. तो फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन विल बी हाउ मच? 11,750. लैंड एंड बिल्डिंग में 5% है. लैंड एंड बिल्डिंग में 5%. सो हाउ मच इट इज कमिंग? 2,50,000 का 5%, 12,500. व्हीकल पे इट इज 20%. सो 1,50,000 का 20%, it is 30,000. तो माइनस करो, यू विल गेट द नेट फिक्स एसेट. 75,000 माइनस किया 3,75,000 से, तो इट इज 3 लाख.
1,17,500 से 11,750 माइनस किया, so it is 1,05,750 एंड इसके बाद 2,50,000 से 12,500 माइनस किया, so it is 2,37,500. 1,50,000 से 30,000 माइनस किया, it is 1,20,000. ये सबका टोटल ऐड करो, you will get 7,63,250. एंड ईयर ये सब डेप्रीसिएशन का टोटल ऐड करो, you will get 1,29,250. So we have got gross block to gross fixed asset total, depreciation total, net fixed asset total. तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इन द असेट साइड, तीनों का हमें अमाउंट चाहिए. तो ग्रॉस फिक्स असेट इज 8,92,500, depreciation is 129,250 and net block is 763. net fixed asset is 763,250. सो हमें ये नोट से हमें सब टोटल्स मिल गया. दिस वाज फोर्थ वन, दिस वाज फोर्थ वन, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड. सो इसके साथ अभी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है. 1,25,000. सो आई विल राइट 1,25,000. फिर लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड है. लोन्स एंड एडवांसेस में व्हाट इज देयर? लोन्स एंड एडवांसेस में कुछ भी प्रीपेड रहता है तो डेट विल कम. सो प्रीपेड इज 6,250. दैट इज प्रीपेड रेंट ऑफ 6,250. दैट इज अवर लोन्स एंड एडवांसेस 6,250. चाहिए तो वी कैन राइट हियर, तुम लोग हम नोट्स नहीं बना रहे, सो वी कैन राइट हियर प्रीपेड रेंट 6,250. इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 166,250. सो आई विल राइट हियर 166,250. फिर ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों है क्या? यस, डेटर भी है, बिल रिसीवेबल भी है. तो उसके लिए तो हमें नोट में जाना पड़ेगा. दो है ना, तो ऐड करके लिखने के लिए नोट में जाते हैं. तो ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट वी विल डू, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. सो डेटर कितना है? हाउ मच इज द डेटर? डेटर का टोटल अमाउंट देखते हैं. डेटर एंड बिल रिसीवेबल. डेटर, how much is the debtor? 1,29,000, 45,750. So we'll write the amount. Debtor is 1,29,000 and bills receivable is 45,750. दोनों का total is coming to 174,750. 174,750. So I will write here daters के सामने 174,750. फिर हमारे पास देखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक दोनों है या कोई एक ही है? सिर्फ कैश एट बैंक है. 1,09,250. सो आई विल राइट हियर 1,09,250. बट अभी मैं असेट साइड का टोटल तो निकाल सकती हूँ, बट आई कैन नॉट टेक द टोटल ऑफ लाइबिलिटी बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिमेनिंग. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के लिए मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए. तो अभी व्हाट आई विल डू, लेट अस गो टू द दिस P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नेट टर्नओवर लिखते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सो इधर 6:1 नेट टर्नओवर, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स में से लेस करना पड़ेगा रिटर्न्स. सो आई विल गेट sales return net turnover. So let us see in the question whether that is there.
सेल्स रिटर्न है और सेल्स दोनों है 14,12,500. So I will write here 14 lakh 12,500, 14,12,500 and sales return is 12,500. सेल्स रिटर्न कितना है 12,500. इफ यू वांट आई विल शो यू ऑल्सो. तो माइनस करने पे इट कम्स टू हाउ मच 14 lakhs. तो नेट सेल्स 14 lakhs है. देखो सेल्स रिटर्न दिया है क्वेश्चन में 12,500, 14 लाख 12,500 इज सेल्स. सो यहाँ पे नेट टर्नओवर विल बिकम 14 lakhs. तो यहाँ पे फिफ्थ वन जो था इट वाज ट्रेड रिसीवेबल एंड नाउ व्हाट सिक्स्थ वन इज टर्नओवर. अब अदर इनकम चाहिए. अदर इनकम चेक इन द बैलेंस शीट. हमारे पास क्या अदर इनकम है? हमारे पास कमीशन एक है बिकॉज इनकम यू विल सी इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. कैपिटल इज लाइबिलिटी, सेल्स इनकम ऑलरेडी लिख लिया, क्रेडिटर बिल पेबल. ओनली वन अदर इनकम इज देयर, कमीशन 1250. सो इधर अलग से नोट बनाने का ज़रूरत नहीं है, 1250. एंड इसके बाद ये नोट बनाना पड़ेगा बिकॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक के लिए आई विल रिक्वायर अ नोट, सेवेंथ नोट. This less returns has come down. So I will write here, paste here, less return. फिर इसके बाद अभी हमें चाहिए सेवेंथ वन, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक. इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 166,250. ओपनिंग स्टॉक 1,11,000, सॉरी 1,15,000, बराबर 1,15,000. सो इधर लिख लेते हैं हाउ मच इज क्लोजिंग स्टॉक. इट इज 1,66,250. हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लेस हो रहा है, इट इज ओपनिंग स्टॉक इज 1,15,000. फिर लेस करके हाउ मच यू आर गेटिंग चेंज इन स्टॉक, इट इज 51,250. सो आई विल राइट हियर चेंज इन स्टॉक मुझे मिला 51,250. तो ये तीनों को ऐड करके कितना होगा, इट विल बी 14,52,500 टोटल इनकम. नाउ एक्सपेंसेस में परचेस डायरेक्टली दिया है या रिटर्न्स कैरेज कुछ है? परचेस डेबिट साइड में ओनली परचेस 7 लाख इज देयर. रिटर्न्स तो क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न है ही नहीं and there is no carriage also. So we can directly write here purchase is 7 lakh without any preparing of any शेड्यूल बिकॉज कुछ भी और है नहीं. पर्सनल एक्सपेंसेस में सैलरी के अलावा और कुछ है क्या? लेट अस चेक. पर्सनल एक्सपेंसेस में एनीथिंग इज देयर अदर देन सैलरी? Salary is there, but salary is having an adjustment 1,55,000. So what we have to do, यहाँ पे 8 to 1 salaries
1,55,000, फिर add आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर लिखा हमने 20,000, so 20,000, so this will become how much, salary will become how much, 1,75,000. so personal expenses में कितना लिखेंगे, 1,75,000. so here 8 to 1, 1,75,000. अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी ज़्यादा है तो ये भी 9th में बनाना पड़ेगा. सो here 9 to 1 administrative expenses. अब let us see what is related to office expense. सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस है 1,05,000. फिर रेंट एंड इंश्योरेंस, फिर व्हाट इज देयर, रेंट एंड इंश्योरेंस के बाद अकाउंटेंट फीस है, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है. मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस आर कमिंग हियर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में. सो लेट अस राइट वन बाय वन, और कुछ है ही नहीं. सो सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस 1,05,000, sorry 1,05,000, I'm sorry, 1,05,000. and then we have rent and insurance. Rent is the biggest amount. The rent and insurance kitna hai, it is 38,750. let us check. 38,750, इसमें एडजस्टमेंट है. प्रीपेड 6,250, प्रीपेड है तो लेस करना पड़ेगा. सो प्रीपेड रेंट है लेस प्रीपेड 6,250. सो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 32,500. फिर इसके बाद व्हाट एल्स वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑल्सो देयर इज एडजस्टमेंट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट देखो कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,250, 6,000 आउटस्टैंडिंग. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,250 add outstanding, which is add 6,000, which is giving us 23,250. 23,250. So we'll write here. नहीं अभी नहीं, पूरा टोटल लिखेंगे. Then what else is there after this? After printing and stationery, I think we have accountant fees 8,750. So accountant fees. See, accountant is not the CA. Agar accountant is not the auditor. He is the employee in the office. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ही जाएगा बिकॉज अकाउंटेंट इज वन ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑफिस एंड उसका यहाँ पे ऑफिस में उसका फीस जो है ऑफिस एक्सपेंस में आएगा. सो एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ऑडिटर अलग है, अकाउंटेंट अलग है. सो हमने अगर हम अज्यूम करते अकाउंटेंट हियर इज रेफरिंग टू ऑडिटर, सो वो अजम्पशन के साथ हम ऑडिट फीस में इसको डाल सकते थे. बट टू सिंपल टर्म्स में हमने यहाँ पे डाल दिया विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस 8,750. तो ये सबको ऐड करके कितना होता है, 1,65,000. कितना होता है, 1,65,000. सो इधर हम क्या करेंगे, 1,65,000
65,000. डेप्रीसिएशन तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है. डेप्रीसिएशन कितना है? 129,250. सो डेप्रीसिएशन इज 129,250. डेप्रीसिएशन 129,250. नाउ इसके बाद तो कोई अदर एक्सपेंस है ही नहीं है तो उसको नील लिख देते हैं. नाउ टेक द टोटल ईयर, हाउ मच यू आर गेटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस. सबका ऐड करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 11,69,250. अभी ए माइनस बी करो, यू विल गेट द प्रॉफिट और लॉस. ये बी है, दिस इनकम इज द ए, जस्ट टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे ए माइनस बी. सो हाउ मच यू आर गेटिंग? माइनस करो, कितना मिल रहा है? 2,83,250. You are getting 2,83,250. How? 14,52,500 minus 11,69,250. You get 2,83,250. अब यहाँ पे ये प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर्स में बाय नेट प्रॉफिट. कोई रेशो दिया है ऊपर पार्टनर्स का, कैसे प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:1:2. तो रेशो क्या है दिया है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 2:1:2. 2:1:2. ये रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है. सो कितना है? 2,83,250. 2 + 2 + 1 is 5. So 2,83,250 into 2 divided by 5. How much you are getting? You're getting 1,13,300. Same way, same amount, 2,83,250 into 1 divided by 5. We are getting 56,650. सेम 2 डिवाइड बाई 5 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. सो 1,13,300. अब इसको बंद करेंगे तो वी विल गेट द हियर 2,25,000 plus 1,13,300 is giving us 3,38,300. Same way 1,30,000 plus 56,650 is giving us 1,86,650. And last one 1,65,000 plus 1,13,300 is giving us 2,78,300. ये सेम चीज को we will copy here and drawing minus करके we will get the closing contribution to balance carried down. तो 30,000 माइनस किया तो कितना मिला? 3,08,300. फिर सेम वे यहाँ पे 15,000 माइनस किया तो हमें मिला 1,71,650. 15,000 माइनस करके इधर 2,78,300 से 47,500 माइनस करो, you will get 2,30,800. तो how much will be the total contribution? Total contribution will be equal to 3,08,300, 1,71,650 plus 2,30,800, which is equal to, सबको ऐड करो, 7,10,750. सो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया इन द ईयर 1 lakh. How much it is? 7,10,750. 7,10,750.
750, 2,50,000, 50,000, 3,08,000 plus 26,000 is giving me 13,44,750. Here also add all of this, you should get 13,44,750. The balance sheet should tally, and then we can say that our balance sheet has tallied. Balance sheet. So with this sum is done. Thank you very much everyone.